So today we will see finite automata with output. So there are two different types of finite state machine that generate output. First is the Moore machine and second is the Mealy machine. As we already saw, finite automata unit is divided into two parts, that is finite automata with output and finite automata without output, right? So finite automata with output is divided into two parts, that is Moore machine and Mealy machine, and finite automata without output is divided into two parts, that is DFA and NFA. So NFA is also again divided into two parts, that is NFA without epsilon mu and NFA with epsilon mu, right? So this part, right part, we have already covered with. Now we have left with the left part, that is finite automata with output. So finite automata with output, so there are two types of machine which generates the output, Moore machine and the Mealy machine. Now first we will see the Moore machine. So this Moore machine is the machine with finite number of states, and for which the output symbol at any given time depends only on the current state of the machine. For example, you can say output depends on current state, or we can say output is associated with states. Clear? So in Moore machine, output is associated with states. Now we will see the formal definition of Moore machine. So formal definition. So what is formal definition? So Moore machine is a 6-tuple machine, 6-tuple, defined as M is equals to Q summation triangle delta lambda and Q0, where Q stands for, as we already know, this is the finite set of states, right? Now summation stands for finite set of input alphabet. So finite set of input alphabet. Triangle here is for an output alphabet. So summation is the input alphabet and triangle is for output alphabet, as here the output is generated, right? Now delta is nothing but same state function, state transition function, that is STF. This is now here state transition function, that is STF, which we can represent like this. Q state on input produces next state. Now next is the lambda. So lambda here stands for the machine function. Machine function. So machine function which we represent MAF, right? So lambda is nothing but Q on output. मीन्स स्टेट के साथ ही आउटपुट यहाँ पे एसोसिएटेड है, राइट? एंड Q0 इज नथिंग बट द इनिशियल स्टेट ऑफ द मशीन, राइट? इनिशियल स्टेट ऑफ मशीन. सो क्लियर? सो हियर जैसे हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में एक कैपिटल F था इसमें, तो विच स्टैंड्स फॉर फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट, सॉरी फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट. सो यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं आएंगे, एज दिस मशीन इज़ टू जनरेट द आउटपुट.
फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट से हम लोग क्या करते थे, सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते थे, आउटपुट जनरेट नहीं करते थे। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन एंड मशीन फंक्शन। सो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन में हमें नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, बाय कंसीडरिंग फ्रॉम द करंट स्टेट बाय टेकिंग एनी इनपुट, नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी वो पता चलेगा, और मशीन फंक्शन से उस स्टेट के साथ कौन सा आउटपुट एसोसिएटेड है वो पता चलेगा। सो क्लियर। एंड मिले मशीन के फॉर्मल डेफिनेशन में एक ही यहाँ पे डिफरेंस है, सेम है वो भी 6 टपल, ओनली इट इज़ डिफर इन आउटपुट। ठीक है। सो आउटपुट यहाँ पे क्या है, दैट इज़ MAF। मशीन फंक्शन जो है दैट विल गेट चेंज, दैट इज़ Q ऑन इनपुट प्रोड्यूसेस आउटपुट। क्लियर। सो यहाँ पे जो है मिले मशीन में आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ input, output is associated with current input we can say, and in Murray machine output is associated with states. Clear. So basic difference, Murray machine में आउटपुट किसके साथ है, स्टेट के साथ है, और मिले मशीन में आउटपुट किसके साथ है, इनपुट के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। So first example, that is design a Murray machine. Design a Murray machine for 1's complement of binary number. Okay. So see here, किसके लिए मशीन हमें डिज़ाइन करनी है, टू फाइंड आउट द one's complement of binary number. As we already know what is binary number, which is represented as 0 and 1 से, right? तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक आउटपुट हमें चाहिए और इनपुट चाहिए, राइट? सो दिस इज़ द इनपुट, राइट, 0 1. सो व्हाट शुड बी द आउटपुट, आउटपुट हम लोग रिप्रेजेंट किससे करें, आउटपुट अल्फ़ाबेट ट्राइंगल से. सो व्हाट शुड बी द आउटपुट 0 1, राइट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही करना है हमें. वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, और आउटपुट अगर इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा. दैट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट. सो नाउ तो हमें इसीलिए 2 आउटपुट ही हमारे पास, तो कितने स्टेट्स लगेंगे हमें, 2 स्टेट्स लगेंगे टू रिप्रेजेंट दैट 2 आउटपुट. सो Q0 के साथ हम लोग सपोज 0 आउटपुट एसोसिएटेड करते हैं, और Q1 के साथ हम लोग कौन सा आउटपुट एसोसिएट करते हैं, 1 आउटपुट एसोसिएट करते हैं. तो क्लियर. सो मूरे मशीन में क्या होता है, आउटपुट इज़ एसोसिएटेड विथ इनपुट, तो आउटपुट भी क्या है हमारा 0 1. सो हम लोग Q0 के साथ 0 आउटपुट एसोसिएट किया एंड Q1 के साथ 1 आउटपुट एसोसिएट किया. क्लियर. नाउ जैसे हम लोग मशीन डिज़ाइन करते हैं तो उसे फुलफ़िल करते हैं, जिसे DFA ही बोलते हैं, तो वो फुलफ़िल करते हैं. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल Q0 से हमें 2 इनपुट लेने होंगे, 0 एंड 1. सो Q0 से 0 इनपुट अगर लेते हैं, सो कौन से स्टेट पे जाना चाहिए, राइट. सो इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 1, राइट. तो इसीलिए Q0 से 0 इनपुट अगर लेके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, Q1 स्टेट पे, क्योंकि 1 आउटपुट किसके साथ एसोसिएटेड है, Q1 स्टेट के साथ. क्लियर. सेम अगर 1 लेते हैं इनपुट तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 0. सो 0 किसके साथ है, Q0 के साथ, इसीलिए 1 का यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ लूप आएगा. क्लियर. सेम फ्रॉम Q1 0 इनपुट लेते हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 1 होगा, राइट. 1 आउटपुट किसके साथ है, Q1 के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे 0 का लूप आएगा. और 1 इनपुट लेते हैं तो आउटपुट क्या होगा, 0. सो 0 किसके साथ है एसोसिएटेड, Q0 के साथ, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे 1. क्लियर. सो ये हो गया हमारा फाइनल मूरे मशीन डिज़ाइन. ठीक है.
सो नाउ हमने इनपुट निकाला, आउटपुट अल्फ़ाबेट निकाला, नाउ हमें ट्रांजिशन फंक्शन निकालना होगा. सो यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन दो है, दैट इज़ STF एंड MAF, मशीन फंक्शन एंड स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन. सो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? Q ऑन समेशन प्रोड्यूसेस नेक्स्ट स्टेट, एंड ये क्या है? Q ऑन आउटपुट, राइट. तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? कितने स्टेट से? Q0 एंड Q1 दो ही स्टेट से. इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड विथ एरो, स्टेट एंड इनपुट. सो इनपुट कौन से है? 0 एंड 1, राइट. सो Q0 से 0 इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट कौन सी है हमारी? Q1. सो Q1. 1 लेके नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q0. Q1 से 0 इनपुट लेके Q1 और 1 इनपुट लेके Q0. क्लियर. नाउ यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा? स्टेट एंड आउटपुट डायरेक्टली. तो स्टेट एंड आउटपुट, सो Q0 Q1, ठीक है. Q0 के साथ क्या है आउटपुट? 0 एंड Q1 के साथ 1. सो क्लियर. सो इसको हम लोग कंबाइन करके भी लिख सकते हैं लाइक दिस. Q0 Q1 0 1 एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आउटपुट डाल सकते हैं. सो जैसे ये तो टेबल एज इट इज़ रहेगा और इसके साथ जो भी आउटपुट है यहाँ पे एसोसिएट करेंगे. तो ये कंबाइन करके भी लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डिज़ाइन अ मूरे मशीन फॉर one's complement of binary number. So clear. Now we'll see the second example. So design a Murray machine that gives an output of 1 if the input string ends in BAB. Clear? So what is the question? Design a Murray machine that gives an output of 1 if the input string ends in BAB. Clear? So now what is the input over here? What is the input over here? We have to find out first the input, right? So कौन से string पे end होने के बाद बोला है output 1 होना चाहिए BAB पे, right? So BAB means what? What is the input? A and B, right? And what should be the output? क्या बोला है? Design a Murray machine that gives an output of 1. राइट मीन्स हम लोग क्या लेंगे? एक 1 आउटपुट रहेगा ही, और अगर BAB पे एंड नहीं होता है, राइट, तो आउटपुट क्या हो सकता है? 0. सो 0 एंड 1 हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है. ना इसके लिए हमें क्या करनी है? मूरे मशीन डिज़ाइन करनी है. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डिज़ाइनिंग पार्ट कैसे करना है, जैसे हम लोग DFA डिज़ाइन करते थे सेम वे से हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे इसके लिए. ठीक है. तो DFA डिज़ाइन करते वक्त हम लोग क्या करते थे? जो भी स्ट्रिंग गिवन है उसके लिए बेसिक डिज़ाइन हम लोग करते थे, राइट. सो बेसिक डिज़ाइन करते हैं, फिर यहाँ पे भी हम लोग Q0. सो BAB के लिए हम लोग क्या करते थे? न्यू स्टेट्स ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, राइट. सो BA एंड Q3B. ठीक है. न्यू स्टेट हमने BAB के लिए ऐड कर दी है. क्लियर. नाउ अभी आउटपुट हमें स्टेट के साथ एसोसिएट करना है, राइट. सो BAB पे एंड होने के बाद आउटपुट क्या आएगा? 1. मीन्स 1 आउटपुट किसके साथ होगा? Q3 के साथ होगा. क्लियर. क्योंकि BAB पे एंड होने के बाद स्ट्रिंग, इफ द इनपुट स्ट्रिंग एंड्स इन BAB देन आउटपुट शुड बी 1, राइट. सो BAB पे जब एंड होगी तब आउटपुट क्या होगा? 1 होगा. अदरवाइज बाकी स्टेट के लिए आउटपुट क्या होगा? 0 होगा. क्लियर. सो अदर स्टेट के लिए हम लोग आउटपुट क्या एसोसिएट करते हैं? 0. ठीक है. नाउ सेम DFA की कंडीशन फुलफिल करते हैं, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन शो करते हैं. ठीक है. नाउ एंड्स इन BAB बोला है. क्लियर. सो सी हियर
सो Q0 से B के लिए ऑलरेडी ट्रांजिशन है, हमें ऐड किसके लिए करना है, A के लिए, राइट. सो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, वी विल ट्राई फॉर द सेल्फ लूप फर्स्ट, राइट. सो A के लिए सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या यहाँ पे, तो चेक कीजिए. A कैसे रीड होगा, ये A B A B हो रहा है, बी ए बी पे ही एंड हो रहा है, यस. सो इसीलिए ए का हम लोग सेल्फ लूप यहाँ पे दे सकते हैं. नाउ कम टू Q1 पे ए का ऑलरेडी है, हमें बी का देना है, तो बी के लिए सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या, यहाँ पे कैसे रीड होगा, ये बी बी ए बी. सो बी ए बी पे ही एंड हो रहा है, मैं कितने भी टाइम यहाँ पे बी लूँ तो भी, राइट. तो इसीलिए हम लोग ले सकते हैं, राइट. नाउ कम टू Q2. नाउ Q2 से B के लिए है, A के लिए मुझे ऐड करना है, राइट. सो A के लिए मैं सेल्फ लूप दे सकती हूँ क्या, यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि क्या होगा वो B A A B विच इज़ नॉट अलाउड. हमें क्या करना है, B A B पे एंड करना है, राइट. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ट्राई फॉर प्रीवियस स्टेट. तो प्रीवियस इस स्टेट पे हम लोग दे सकते हैं क्या, तो कैसे रीड होगा वो B A A A B which is not possible. then try for उसके previous state, right. ना उसकी previous state क्या है, Q0 A. तो कैसे होगा रीड अभी, B A A B A B. तो हो सकता है, yes, clear. now same from Q3. सो Q3 पे दोनों इसका हमें देना है A एंड B का, राइट. सो A के लिए हम लोग सेल्फ लूप दे सकते हैं कि किसी भी लिए यहाँ पे नहीं दे सकते, राइट. सो A के लिए हम लोग प्रीवियस स्टेट Q2 है, तो दे सकते हैं क्या Q2 पे, A के लिए Q2 पे दे सकते हैं क्या, कैसे रीड होगा ये B A B A B दे सकते हैं, B A B पे ही एंड होगा तो 1 आएगा, राइट. तो दे सकते हैं, राइट. सेम फॉर बी के लिए यहाँ पे सेल्फ लूप तो नहीं दे सकते, लेकिन Q2 पे दे सकते हैं क्या, बी के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होगा वो 3 टाइम्स बी होगा, राइट. देन ट्राई फॉर उसकी प्रीवियस स्टेट क्या है, Q1. सो यहाँ पे मैं अगर बी का देती हूँ तो कैसे रीड होगा, B A B A B A सॉरी B A B B A B, राइट. सो किस पे एंड हो रहा है वो, B A B पे ही एंड हो रहा है, राइट. तो आउटपुट 1 है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिज़ाइन द मुरे मशीन विच गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 इफ द इनपुट स्ट्रिंग एंड्स इन B A B. सो दिस इज द डिज़ाइन पार्ट. नाउ इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्टेट फंक्शन एंड मशीन फंक्शन. तो अभी मैं यहाँ पे कंबाइन निकालती हूँ, ठीक है. तो स्टेट फंक्शन एंड मशीन फंक्शन को कंबाइन कर देती हूँ. तो समेशन स्टेट्स कौन से Q0 Q1 Q2 एंड Q3, राइट. नाउ यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से. इनपुट इज़ A एंड B एंड आउटपुट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ ट्राइंगल, क्लियर. सो Q0 के साथ आउटपुट क्या है, 0. Q1 के साथ क्या है, 0. Q2 के साथ क्या है, 0. Q3 के साथ क्या है, 1, लाइक दिस, क्लियर. सो Q0 से A इनपुट लेके हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 से A इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q0 ही है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q0. सेम B इनपुट लेके Q0 से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, Q1 पे. तो यहाँ पे B के लिए क्या आएगा, Q1 आएगा. सेम Q1 से A इनपुट लेके कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 पे, और B इनपुट लेके Q1 पे ही है, राइट. सो Q2 Q1. तो यहाँ पे क्या आएगा, Q2 Q1. नाउ Q2 से A एंड B लेके कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 से A लेके जा रहे हैं Q0 और B लेके जा रहे हैं Q3. सो Q0 Q3, राइट. सो Q0 Q3. नाउ Q3 से A एंड B लेके कहाँ पे जा रहे हैं, Q3 से A लेके जा रहे हैं Q2 और B लेके Q1. सो Q2 Q1. सो Q2 Q1. सो क्लियर. सो here that gets end. Okay.